Hello everyone, welcome to EduTap. As you would be knowing that IFSCA Grade A Notification 2025 is expected to be announced anytime soon. And a lot of students are still confused that whether they want to appear for this examination or not. So as a part of this video, we are going to discuss the complete syllabus with respect to IFSCA Grade A. We'll talk about different components. I will show you few PYQs also so that you get a difficulty idea. And this video is going to be helpful for those aspirants who have shortlisted different examinations as a part of their preparation. And you will come to know that whether IFSCA Grade A is an examination for you or not. Fine. And these things we are going to discuss, but before we move forward, here's a small announcement that we know previous year papers, they play very important role no matter what examination you are preparing for, including IFSCA Grade A. Fine. So what you can do, you can go to the description box, you can click over the link, and from there you can download the previous year papers with respect to 2023 and 2024 along with their answer keys. Fine. It will help you to understand the trend and pattern with respect to this examination. और syllabus तो मैं बता ही रहा हूँ इस वीडियो में, तो PYQ भी देख लोगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. It will act as a guiding light that what to prepare and how to prepare. Fine. Now moving forward, let us decode the syllabus. Now, like any other regulatory body exam, this exam also has phase 1 and phase 2. And let me tell you that a lot of syllabus with respect to this examination overlaps with exams like SEBI एंड आरबीआई. ठीक है, तो जो स्टूडेंट सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो मैं बोलूंगा कि प्लीज डू नॉट मिस दिस एग्जाम. व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ सिलेबस यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो सेबी से ओवरलैप हो रहा है. अगर मैं कंपनी लॉ को हटा दूं जो सेबी में है और यहाँ पर नहीं है, बाकी जितना भी है यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक एडवांटेज वाली साइड में रहोगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलने वाली है बिकॉज फाइनेंस यहाँ पर है, मैनेजमेंट यहाँ पर है, इकोनॉमिक्स यहाँ पर है. सो ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई इन अ डेडिकेटेड मैनर, देन आई वुड से यू शुड बी इन अ गुड पोजीशन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है. आगे चलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट फेज वन, इफ यू टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ फेज वन, फेज वन बेसिकली इंक्लूड्स टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू. हम यहाँ पर जनरल स्ट्रीम की बात करेंगे, नॉट द लीगल स्ट्रीम. ठीक है, बट लीगल स्ट्रीम भी होती है. But if you talk about paper one, first of all, paper one, just like RBI or just like SEBI, this exam also includes the general awareness, English, quants and reasoning. तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और खास करके बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर, इट इज ओनली 30%. You just need to qualify with 30%. And with respect to this paper, and in combined for paper 1 and paper 2, you need to cross this aggregate cutoff of 40%. ठीक है. तो 30% इसके लिए, 40% इसके लिए, ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया दोनों के लिए, पेपर वन और पेपर टू के लिए. ठीक है. एंड जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो है 40%. प्लीज नोट दैट कि यहाँ पर कोई जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनके लिए सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पेपर वाइज कट ऑफ है. ओवरऑल ये जो 30% है ये पूरा पेपर वन के लिए. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के लिए अलग कट ऑफ होगा, क्वांट्स के लिए अलग कट ऑफ होगा, रीजनिंग के लिए अलग कट ऑफ होगा. दैट इज नॉट द सिनेरियो ओवर हियर. फाइन. सो आई वुड से दैट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. वट एवर यू हैव बीन प्रिपेयरिंग टिल नाउ for the quants, reasoning, I would say the English and GA, just continue that approach and I would say that should be sufficient for this examination. उसके अलावा जब आप मंथली मैगजीन्स रिवाइज कर रहे हैं तो कोशिश करना कि फाइनेंशियल सेक्टर वाले पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ पर. ठीक है. और यहाँ पर प्रिसाइजली लिखा भी हुआ है सिलेबस में, और आप पीवाईक्यू भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो फाइनेंस सेक्टर है उससे कहने की क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इफ यू टॉक अबाउट पेपर टू, I will discuss each and every component in a detailed manner, do not worry, but this is just overview. It includes MCQs with respect to current events on national and international importance, economic and social development, poverty inclusion, commerce accountancy, management, finance and costing, Indian economy, global economy, 5-year plan, central government initiative. So you can see, इफ आई टॉक अबाउट दिस सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस ओवरलैप हो रहा है आरबीआई के साथ, और मैं तो कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो ओवरलैप हो रहा है वो तो हो रहा है सेबी के साथ. ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस्टिंग एंड ऑल ये सब भी है. सो दिस इज समथिंग आई वुड से इज गोइंग टू बी an examination where you can give your best, and you will be in a good position if you have been working hard for these other examinations with which the syllabus is overlapping. Now moving forward, some other details, there will be negative marking also. ठीक है. 1/4 of negative marking होगी for both paper 1 and paper 2 इन फेज वन. एंड कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 30% है पेपर वन के लिए, और जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं है किसी भी पेपर के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद रिस्पेक्ट टू पेपर टू वी हैव 40% कट ऑफ, एंड द एग्रीगेट कट ऑफ इज 40%. ठीक है, जो आपको ओवरऑल कट ऑफ लाना होगा इन दोनों पेपर्स को क्लियर करके इन ऑर्डर टू गेट क्वालिफाइड फॉर द फेज टू. ठीक है. और जो आपके फेज वन वाले मार्क्स हैं,
ये बिल्कुल भी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को डिसाइड नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर, आई वुड से, द ओनली पर्पस ऑफ दिस फेज वन इज टू मेक यू क्वालिफाइड फॉर द फेज टू। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि बस किसी तरह कट ऑफ क्लियर कर लो और फेज टू में पहुंच जाओ, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फेज वन पेपर टू, क्योंकि फेज वन पेपर वन जो है वो पूरा का पूरा वैसा ही है, बहुत ही जनरल है, ठीक है, जैसा आप बाकी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हो, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिकली with respect to this paper 2, fine, so let us see. So the first one is general knowledge current events of national and international importance। तो ये चीज है जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आई वुड से साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करनी है। जो जनरल नॉलेज की चीजें चल रही है आसपास न्यूज में, यू हैव टू प्रिपेयर दैट, बी इट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये देखो, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, फाइन। तो देखो कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड डायरेक्टली आई वुड से जिस तरह की थीम दी है सिलेबस में उसी हिसाब से उन्हें क्वेश्चन पूछा, तो इस तरह की न्यूज आपको पढ़नी है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर, फाइन, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। The next type of question, you can see over here that UPI Pay Now has been launched in India and in which country? So you can see, you have to mark the answer. तो जो question है उसी तरह से पूछे, general knowledge, finance based, national and international importance based, such type of questions are asked. So accordingly you have to prepare this component of the paper 2. Now moving on to the next component, which is I would say economics and social development। तो syllabus बहुत ही precisely mentioned है, you can see it over here। सबसे पहले growth and development लिखा है, फिर social structure लिखा है, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि प्लीज इसको प्रिपेयर करना, do not skip this part of the syllabus, क्योंकि जो skip करना होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा that what are the areas I would say that should not be your topmost priority, we will talk about it later। but ये एक ऐसा एरिया जो of course it is scoring, ठीक है। यहाँ पर आप मेहनत करोगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, बिकॉज आई वुड से इफ यू टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर जीडीपी, जीएनपी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ोगे कि लेबर फोर्स क्या होती है, फाइंड एलएफपीआर क्या होता है, देन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देन यू विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इशूज ऑल्सो, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एंड विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ 17 एसडीजीज, व्हाट इज एसडीजी 1 2 3 4 5, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीवाईक्यू में, तभी मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो आउटपुट है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करना, मल्टीकल्चरलिज्म हो गया, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रेंड हो गया, और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू हैव टू डाउनलोड दिस पीवाईक्यू फाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहां से आपको एकदम समझ आ जाएगा, हमने सेक्शनल वाइज एग्रीगेट किया हुआ है कि लास्ट ईयर सोशल स्ट्रक्चर में से क्या पूछा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से क्या आया था। तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड क्वेश्चन की क्या डायरेक्शन है, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रही है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रही है, फाइन। सो this is my humble request that go to the description box, download the PYQs once you are done with this video, fine। Now moving forward, ये है question, this is just a sample, I've taken the screenshot from that document only, and you can see कि which of the following sustainable development goals strive to achieve gender equality। अब sustainable development सिलेबस का पार्ट है तो वहां से सीधा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द डोमेन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। तो आपको ये अगर आपने डेमोग्राफिक ट्रेंड पढ़ा है, यू विल बी एबल टू आंसर इट। विच एज ग्रुप्स पॉपुलेशन इज फैक्टर्ड इनटू कैलकुलेशन ऑफ इंडियाज लिटरेसी रेट, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रेंड है, ठीक है, सोशल जस्टिस है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक अकॉर्डिंगली। और ये देखो यहाँ से डेमोग्राफिक ट्रेंड में से क्वेश्चन आया है एंड यू नीड टू प्रिपेयर दिस थिंग्स इन अ डिटेल मैनर। और ऐसा नहीं है कि डिटेल में पढ़ने का मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन चीज़ों को कवर करना। आई वुड से बहुत चीज़ें कॉमन सेंस पे भी बेस्ड होती है एग्जाम में, इन टॉपिक्स के रिलेटेड स्पेशली, और ये बहुत स्कोरिंग एरिया है, सो प्लीज डू नॉट स्किप इट। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर मेजर्ड इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिलेबस का पार्ट है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मनी इन द गुड्स मार्केट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेसिक क्वेश्चन आया। तो जो डिफिकल्टी लेवल है बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आरबीआई सेबी से बहुत ज्यादा अलग है। तो अगर आप उन्हीं एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा आपको यहाँ पे प्रिसाइजली सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। यू हैव टू पुट मोर फोकस अपॉन दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड आई वुड से द जॉब इज डन, ठीक है। किसी तरह बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है, 40% कट ऑफ क्लियर करना है और आपको किसी तरह बस फेज 2 में पहुंच जाना है एंड फिर हम फेज 2 की बात करेंगे, ठीक है। सो दैट शुड बी योर अप्रोच। बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट इन चीजों को अच्छे से कवर करो जो स्कोरिंग है, ताकि आप किसी तरह बस कट ऑफ क्लियर कर लो। अब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आता है, ठीक है। सभी वालों के लिए ये पोर्शन थोड़ा आई वुड से स्कोरिंग होगा।
आरबीआई वालों के लिए भी स्कोरिंग हो सकता है, बट आई वुड से कि जो लोग आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी थोड़ा आता है, ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक्स पढ़े हुए हैं, वो उस इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, तो सो दैट यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. बट दोज पीपल हु हैव नेवर स्टडीड दिस टॉपिक ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ लिमिटेड एरिया पे पोर्शन करो. विच आर दो लिमिटेड एरियाज? फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन, लेजर, जनरल, डेबिट एंड क्रेडिट. अब ये सिलेबस में प्रिसाइजली मेंशन तो नहीं है, बट द थिंग इज दैट दीज आर द बेसिक्स, ठीक है. और बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे एग्जामिनेशन में, इजी क्वेश्चन भी आते हैं अगर आप इन एरियाज पे फोकस कर लोगे, ठीक है. ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, financial statement analysis, preparation of final company accounts. So if you are able to prepare these components, I would say on a priority basis. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रिक्टली बाकी के एरिया छोड़ के चले जाओ, मैं प्रायोरिटी की बात करो, बिकॉज टाइम लिमिटेड होगा आपके पास. तो अगर इन एरियाज को आप प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर लेते हो, तो एग्जाम में कम से कम आप आई वुड से इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है. और डिफिकल्ट तो नहीं कर पाओगे, क्या पता, क्योंकि आपने ज़्यादा इंटेंसिफाइड वे में इसको नहीं प्रिपेयर किया होगा. बट द थिंग इज दैट अगर इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट फाइन, एंड दैट्स द पॉइंट. सो क्वेश्चंस का आई वुड से सैंपल देख लेते हैं. व्हाट, लेट अस सी दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पीवाईक्यू. सो लुक एट हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है. अ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेट्स व्हाट, ठीक है. तो जो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, जो मैंने आपको बताया, आप इन चीज़ों को थोड़ा ढंग से कर लेते हैं, सो कम से कम आप इजी क्वेश्चन करके आ जाओगे. यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू दैट फाइन, एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू. सो प्लीज डू दिस थिंग्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. और उसके बाद टाइम मिलता है, अगर टाइम मिलता है तो फिर बाकी एरियाज को भी देख लेना, ठीक है. इट्स ऑल अप टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है. ये एक ऐसा एरिया जो आपको करना है एंड करना है. यू कैन नॉट स्किप दिस पोर्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैनेजिंग आई वुड से इज वेरी स्कोरिंग एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न. एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक आरबीआई और मे बी आई वुड से सेबी, ठीक है, जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, बिकॉज यही चीज़ें आप कवर करते हो वहाँ पर भी, और यही चीज़ें आपको यहाँ पर भी कवर करनी है. एंड आई वुड से दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्कोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो यू कैन सी क्वेश्चन भी देख लो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हैं. हु प्रपोज्ड path goal theory, then what type of informal communications involves an individual communicating with selective people from whom they trust, ठीक है. तो इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं. और मैनेजमेंट को किसी कीमत पे मत छोड़ना. जो लोगों ने मैनेजमेंट पहले नहीं भी पढ़ा है, प्लीज आप मैनेजमेंट पढ़ो. डेडिकेट, ट्राई टू डेडिकेट अराउंड 15 डेज, ठीक है, मैनेजमेंट को देने की कोशिश करो. एंड इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट, वर्किंग एस्पिरेंट, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट प्लीज कवर मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है. Now moving on to the next thing, so that is why I've written that do it all. The next is regarding finance. अब फाइनेंस की बात करें तो ये देखो, पूरा सिलेबस रिपीट हो गया है. कहाँ का सिलेबस रिपीट हुआ है? सेबी एंड आरबीआई जैसे एग्जामिनेशंस का, ठीक है. तो ये आपको प्रिपेयर करना है, एंड किसी भी हालत में प्रिपेयर करना है. जो लोग फाइनेंस बेस्ड बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें भी ये प्रिपेयर करना है, ठीक है. And I would say those students who are going to study finance for the first time, they can cover the topic in a on a priority basis, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप sequentially cover करो, तो आप इस तरह cover कर सकते हो. पहले आप इस टॉपिक को कवर कर लो, which is role and functions of regulatory bodies in financial sector. Why is it so? Because basically this topic is very easy to cover, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इनपुट आउटपुट अच्छा है यहाँ पर, ठीक है. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, कौन सी बॉडी किसको रेगुलेट करती है, और आप आंसर कर दोगे. तो सबसे पहले यही कवर कर लो. इसके पास प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट मत करना, इसको थोड़ा होल्ड पे रख दो, ठीक है. और ये बेसिक ऑफ डेरिवेटिव भी थोड़ा होल्ड पे रख दो. उसके बाद आओ उसके बाद आप आओ यहाँ पर, ठीक है, विच इज रिगार्डिंग the recent development in the financial sector, then the financial inclusion, then the alternative source of finance, public private partnership, direct and indirect taxes, inflation and financial risk management, ठीक है. इस सीक्वेंस में आपको कवर कर लेने हैं टॉपिक्स. एंड उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट, आफ्टर दैट यू कैन कम टू प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट एंड द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव. अब इसका मोटिव ये नहीं था कि ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है. दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, बट दीज टॉपिक्स आर अ बिट लेंदी. तो ये नहीं होना चाहिए कि आप इन टॉपिक्स के पीछे ज्यादा पड़ गए और उसके पीछे आपने बाकी सब छूट गया आपका, ठीक है. ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको बाद में करो वंस यू आर डन विद रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स. एंड बेसिकली यू हैव टू कवर देम इन अ डिटेल मैनर. अब जब मैं डिटेल बोल रहा हूँ, डिटेल में जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है बॉन्ड एंड इक्विटी. यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो मनी मार्केट से भी क्वेश्चन आते हैं, बट मनी मार्केट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है. आपको टाइप ऑफ जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो करने होते हैं प्राइमरीली. तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन तो मैंने यहीं से डाले हुए हैं, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है. तो मनी मार्केट में आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स करने होंगे, एंड बॉन्ड एंड इक्विटी पे स्पेशल फोकस डालना होगा, ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. और फॉरेक्स भी लिमिटेड वे में करना है कि एप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, फाइन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग फॉरेक्स मार्केट यू हैव टू स्टडी. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट नॉट स्किप इट. बट
you I would say I have told you the order in which you can cover these portions, ठीक है. एंड ज़रूरी भी नहीं है कि आपको वही ऑर्डर करना है जो मैंने आपको सजेस्ट किया. अगर आपको लगता है कि पहले आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप इसको कम से कम दिन में निपटा सकते हो, तो पहले यही वाला कर लो, ठीक है. तो इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज एवरी पर्सन हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आगे चलते हैं. लेट अस टॉक अबाउट कॉस्टिंग, ठीक है. अब कॉस्टिंग में अगेन ये एक ऐसा एरिया है जो आई वुड से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कभी नहीं पढ़ा होगा. अगर कोई सेबी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसने किया होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बाकियों ने इस एरिया को नहीं पढ़ा होगा. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आई वुड से, क्योंकि आपको जी कट ऑफ ही क्लियर करना होता है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. कॉस्टिंग इज नॉट समथिंग फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट कवरिंग योर पेपर टू फेज वन, फाइन. एंड इन केस व्हेन यू रीच कॉस्टिंग एंड व्हेन यू विल स्टार्ट कवरिंग कॉस्टिंग, यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, विच इज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 3, ओनली बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ही है ये वाला जो पोर्शन है यूनिट 3 का, तो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स करो, ताकि कोई इजी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लो एंड यू कैन गैदर गुड मार्क्स, फाइन. एंड यूनिट 1, 2 एंड 4 पे आपको जो प्राइमरी फोकस है वो करना है, बट कॉस्टिंग सबसे पहले नहीं करना है, ठीक है. ये चीज याद रखना, कॉस्टिंग तो मैं बोलूंगा सबसे लास्ट में करो, जब जब पेपर 2 की तैयारी कर रही हो, बट जब सारे बाकी कंपोनेंट्स खत्म हो जाए, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाओ, तो लास्ट में कॉस्टिंग कर लेना एंड जितना हो सके कर लेना, एंड आफ्टर दैट यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम, ठीक है. सो दैट इज द क्रक्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन द इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी, तो ये वही चीज़ है जो आप बाकी एग्जाम से पढ़ते हो, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, देन मार्केट स्ट्रक्चर, फाइन, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, ये वही चीज़ें हैं जो आप बाकी एग्जाम में पढ़ते हो. तो ये तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और सिलेबस से बहुत लिमिटेड है. यू कैन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. तो ये चीज़ें ऐसी है जो आपको कवर करनी है, बिकॉज इफ यू आर लिविंग दिस पोर्शन, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटेटिव एज एग्जाम में लेने में बहुत मुश्किल आएगी, बिकॉज जो लोग सेबी और आरबीआई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते ही पढ़ते हैं. तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर करना, वरना आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे. तो और ये पोर्शन ऐसा भी नहीं है कि करना बहुत मुश्किल है. अगर आपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया वहाँ से देख सकते हो. अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ी सी आई वुड से अप्रोच स्कैटर्ड हो सकती है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट द थिंग इज दैट आई वुड से if you can manage it, go for it, fine, whatever suits you, it's all up to you, but do not skip it, fine. This is something that you have to cover. Now uh, at the end we have this central government initiative and schemes also. तो अलग अलग तरह की स्कीम पूछी है, तो you have to prepare that, you have to cover the schemes of national importance, जिस स्कीम का impact factor बहुत हाई है, and the current affairs that are of national and international importance. Apart from that, very importantly, जो recent budget है वो आपको पढ़ना, और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप बाकी एग्जामिनेशन में सेबी, आरबीआई, जो भी एग्जाम्स है वहाँ पर कवर करते ही करते हो. तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी हैंडी हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोनेंट ऑल्सो, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू नो द डिफिकल्टी लेवल कि यार कैसी कौन सी स्कीम पूछ लेंगे, कौन सा इनिशिएटिव आ जाएगा एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंटली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. उसे डाउनलोड कर लो और उससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, एंड कौन सी एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया कम इंपॉर्टेंट है. ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू विल कम टू नो यूजिंग द पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट. सो प्लीज गो एंड डाउनलोड इट. Moving on to the next part, fine, the next part is phase 2. I hope now you are okay with phase 1 and you got a good idea that what the syllabus is and whether this examination is for you or not. क्योंकि अगर phase 1 में ही अगर आपको लग रहा है कि यार ये एग्जाम तो मेरे लिए नहीं है, मैंने चीज़ें पहले कभी नहीं पढ़ी और ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं इन चीज़ों को पढ़ पाऊंगा एग्जाम के लिए, so yes, you can safely skip it. But if you're somebody who has covered these things, or if you're somebody who has not covered but still want to appear for the examination and you want to start your preparation, so this is the overview and you can I would say organize your strategy based on that. Now moving on to the next part, which is the phase 2. अब phase 2 की बात करें, phase 2 में भी पेपर 1 पेपर 2 है, ठीक है. तो और एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि फेज 1 में आपको जो प्रिपरेशन करनी है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरह मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, फाइन. आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट्स में या फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जा पा रहे हो, इट्स ओके, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपको किसी तरह बस एग्रीगेट 40% कट ऑफ क्लियर करना है ताकि आप फेज 2 में चले जाओ, ठीक है. फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज जो फेज 1 का सिलेबस है वो फेज 2 में काम नहीं आएगा,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो फेज 1 का फेज 2 में काम नहीं आएगा, बिकॉज द फेज 2 सिलेबस इज डिफरेंट फ्रॉम फेज 1 विच वी विल सी वेरी सून. सो कीप दिस इन्फॉर्मेशन एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. मैंने आपको तभी प्रायोरिटी बताई है कि कॉस्टिंग को कब करना है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में कैसे अप्रोच करनी है. ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू. अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी है कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, वो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है. जैसे आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम है, तो संतोष सर ने अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की है. यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सी कि यार क्या डिटेल स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ इन आई वुड से कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग. ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. मूविंग ऑन टू द फेज 2. ठीक है, फेज 2 में सबसे पहले आपका इंग्लिश, प्रेसिज राइटिंग, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन. ये तो आप हर जगह प्रिपेयर करते हो. ठीक है, आरबीआई का पेपर भी दे रहे हो तो वहां भी प्रिपेयर करोगी. एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको लाइटली लो. आपको फिर भी प्रैक्टिस करना है. प्रेसिज राइटिंग क्या होती है, कैसे हम उसे एक आई वुड से एक प्रॉपर मैनर में लिख सकते हैं बाय कंडेंसिंग द इंफॉर्मेशन. देन हाउ टू अप्रोच ऐसे, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. फाइन, यू नीड टू गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. तो थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा छोड़ दो. बेशक लास्ट में प्रैक्टिस करो आपकी. ऑफकोर्स दिस शुड नॉट बी योर टॉप प्रायोरिटी. ठीक है, दिस शुड नॉट बी योर टॉप प्रायोरिटी एज फार एज द ऑर्डर इज कंसर्न, बट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर इट. डोंट टेक इट लाइटली. ठीक है, उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू आएंगे. तो पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव है, पेपर 2 आपका एमसीक्यू बेस्ड है. 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्कर ईच. फाइन, एंड हियर यू हैव कंपोनेंट्स लाइक आईएफएससीए, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बुलियन, ये सब चीजें हैं. ठीक है, अब इनकी बात करते हैं वन बाय वन. एंड यू कैन सी इट ओवर हियर, रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस you can read it that there will be negative marking with respect to paper 2 in phase 2. 1/4 of negative marking will be there, and there should be a cutoff of 30% in paper 1 and cutoff of minimum 40%. fine, और aggregate cutoff कितना है यहाँ पर भी, aggregate cutoff है 40%. ठीक है, तो 30% यहाँ है, 40% यहाँ है. and let me also tell you that कि यहाँ पर जो paper 2 है, paper 2 का weightage higher है as compared to paper 1. ठीक है, इट इज हायर. 2/3 यहाँ पर है एंड 1/3 यहाँ पे है. तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेपर 1 लाइटली लेना है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे तो आप ओवरऑल कट ऑफ कभी क्लियर ही नहीं कर पाओगे. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू मैनेज योर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड ओवरऑल कट ऑफ इज व्हाट, it is 40%. Now moving on to the next information, which is let us see the syllabus in a detailed manner. So this is a detailed syllabus with respect to phase 2. fine, very precisely with respect to phase 2 paper 2. ठीक है, ये डिटेल सिलेबस है और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको नोटिफिकेशन में ही मिलेगा. नोटिफिकेशन में एक एनेक्जर 2 होगा, एनेक्जर 2. एंड इस एनेक्जर 2 में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, डिटेल्ड सिलेबस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फॉलो इट. Now let us talk about the different components one by one. The first component is basically IFSCE Act. ठीक है, IFSCE Act आपको अच्छे से करना है और डिटेल में करना है. किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पीवाई के डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. बट द थिंग इज दैट अगर मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाऊं, यू कैन सी SGC निफ्टी इंडेक्स रीनेम्ड एज व्हाट, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन IFSCE, देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट इन गिफ्ट सिटी. ठीक है, इस तरह से IFSCE रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट, बेसिकली यू जस्ट हैव टू गो टू IFSCE वेबसाइट, ifsce.gov.in, और यहाँ पर आपको अबाउट अस में जाना है और लीगल फ्रेमवर्क में जाना है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन जैसे मेंशन किया. आपको सिर्फ आई वुड से सिर्फ लॉ नहीं पढ़ना, IFSCE एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन अंडर द लीगल फ्रेमवर्क इन द IFSCE वेबसाइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Now the next thing is regarding, I would say, the कैपिटल मार्केट. तो दूसरी चीज वैसे तो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है, बट ऑफ कोर्स ये तो आप करोगे ही करोगे. ठीक है, बिकॉज ये दूसरे एग्जामिनेशन में भी आप करते हो, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन आप पीवाई के डॉक्यूमेंट से देख सकते हो. इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको उसी तरह प्रिपेयर करने हैं जैसे आप बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करते आ रहे हो. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट एंड बुलियन, तो बुलियन ऐसे कोई बड़ा टॉपिक तो नहीं है, ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है. यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड क्वेश्चन भी आई वुड से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते यहाँ से. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट बैंकिंग, सो बैंकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है. ठीक है, बट आरबीआई एंड सेबी वाले स्टूडेंट्स वो बैंकिंग प्रिपेयर करके आते हैं. बट इफ यू आर समबडी हु हैज नॉट स्टडीड बैंकिंग बिकॉज, सो दीस शैल बी योर आई वुड से प्रायोरिटी एरियाज. यू हैव टू कवर बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, यू हैव टू टॉक अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस एंड द आरबीआई फंक्शंस. ठीक है, तो ये मेजर एरिया, जैसे बैंकिंग स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से बैंक है. ठीक है, डिफरेंट बैंक्स का क्या फंक्शन है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं. ठीक है, पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, व्हाट इज द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल बैंक्स क्या है. ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए.
Now apart from that, banking awareness, for example, what is repo rate, what is reverse repo rate, ठीक है, what are different kind of initiatives that are taken as far as the banking sector is concerned. Then you need to know about RBI also, how RBI performs monetary policy, how RBI controls inflation. ये सब चीजें आपको RBI के functions, main important चीजें पता होनी चाहिए, because यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. And you can see it over here, which of the following acts is a scheduled bank classified and mentioned in India. तो ये आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी रिगार्डिंग नैपफिड ऑल्सो, ठीक है, तो ये भी कहना है कि आई वुड से बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर देयर. सो यू कैन सी कि नैपफिड का फंक्शन पूछा और बहुत ही ईजी है, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आई वुड से सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे होते हैं, कुछ मॉडरेट भी पूछे होते हैं, कुछ ऑफकोर्स डिफिकल्ट होंगे, बट दीज आर द प्रायोरिटी एरियाज दैट यू कैन गो फॉर. बट if you are somebody who is from SEBI or maybe RBI grade B background, so what you can do, you have to, of course, this is going to be an advantageous area for you. द नेक्स्ट इज आई वुड से इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस के लिए आपको क्या करना है, आप इंश्योरेंस ऑफकोर्स ज़्यादा डिटेल में मत कवर करो, बट आप क्या करोगे कि आप IRDAI की वेबसाइट में जा सकते हो, ठीक है, वहां पर जाके इंश्योरेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है आप वो देख सकते हो, ठीक है. अगर आपको एक बुक फॉलो करनी है तो मार्केट में एक बुक है जहाँ पर आई थिंक द बुक इज बाई एस चांद. मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, बट मैंने ई बुक में जाके इसको ओवरव्यू देखा था. आप भी जाके गूगल उस बुक्स में जाके इसको ओवरव्यू देख सकते हो, व्हाट इज द इंडेक्स, ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन कवर दीज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, देन गो फॉर इट. अदरवाइज डू द बेसिक थिंग्स फ्रॉम IRDAI वेबसाइट, और IRDAI के बारे में पढ़ो, IRDAI के जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है उनके बारे में पढ़ो, ठीक है. तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर. बट मैंने आपको बुक बता दी है, इट इज बाय एस चंद पब्लिकेशन. द नेम ऑफ द बुक इज आई थिंक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है. बट आप एस चंद पब्लिकेशन ऐसे करके लिखोगे तो आ जाएगा वहां पे, इंश्योरेंस से रिलेटेड बुक है. सो यू कैन गो फॉर इट, बट दिस बुक इज वेरी लेंदी आई वुड से. तो इसलिए मैंने कहा कि पहले गूगल बुक्स में जाके उसका ओवरव्यू देख लेना, इंडेक्स देख लेना कि यार क्या क्या है इस बुक के अंदर. उसके बाद आप चाहे तो ई बुक परचेज कर सकते हो या फिर पेपर बैक ले सकते हो, वॉट एवर सूट्स यू, एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है. बट बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालना, बिकॉज इंश्योरेंस कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर, बस एक सिलेबस का छोटा सा पार्ट है, ठीक है. तो you have to optimize your efforts accordingly. The next is pension funds, ठीक है. तो पेंशन में देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो ये मैंने इंश्योरेंस का स्क्रीनशॉट लगाया आपके लिए. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंश्योरेंस. तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू IRDAI गाइडलाइंस, within how many days an insurer resolve a grievance and issue a final letter of resolution. इससे मैंने आपको कहा कि जो IRDAI के रिगार्डिंग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस मेंशन है वेबसाइट पे, वो आपको जाके पढ़नी होगी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा. ये आपको जब आप फॉलो करोगे डॉक्यूमेंट्स आपको पता लग जाएगा. देन विच टर्म फॉर द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ लॉस व्हेन द इंश्योरेंस कवर इज एन अमाउंट बिलो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आइटम. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर. सो यू कैन सी दैट कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट एंड डिफिकल्ट आ सकते हैं, बट मैंने आपको बुक भी बता दी है, एंड साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि दैट बेसिकली हाउ यू कैन फॉलो द IRDAI वेबसाइट, वेयर यू कैन सी द रिसेंट इनिशिएटिव्स एंड द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर इट. द नेक्स्ट इज पेंशन. अब पेंशन फंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं. सो आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में, अटल पेंशन योजना, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, national pension system. So these type of things are something that you need to know. Apart from that, the recent initiatives that have been taken by the government with respect to the pension sector, you need to read regarding that too. For example, Vatsalya, ठीक है, mission Vatsalya, that is there. You need to read about these things and you have to cover them in an elaborative manner. द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSC एंड IFSCA. तो इसमें जो मेन चीज है, गिफ्ट सिटी तो बहुत जनरल सा टॉपिक है. गिफ्ट सिटी के अंडर जो आता है वो है गिफ्ट IFSCA, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सॉरी गिफ्ट IFSC एंड IFSCA, द अथॉरिटी दैट इज मैनेजिंग दिस IFSC, ठीक है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू दिस ifsca.gov.in. यहाँ वेबसाइट पे आप जा सकते हो. यहाँ पर अगर आप अबाउट अस में जाओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा with respect to the rules regulations with respect to IFSCA, ठीक है. तो circulars guidelines सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर with respect to IFSCA, and through that you can cover it, ठीक है. So that is the primary approach that you have to follow. And apart from that, if you want to read about gift IFSC, ठीक है, यहाँ से तो आपका IFSC हो जाएगा. if you want to cover about gift IFSC तो वो भी आपको यही मिलेगा about us में, how to function में जाना है, ठीक है. तो IFSCA, gift IFSC सब आपको यही मिल जाएगा as a part of it, and you can prepare accordingly. So you can see it over here also.
So this is the website from where you can read International Financial Service Center. So this is again the same website which is Gift Gujarat. ठीक है, तो यहाँ पर आप जा सकते हो एंड इसके रिगार्डिंग पढ़ सकते हो that with respect to it, basically what are the I would say the incentives, the companies that are at Gift City, the setting up a Gift City, then there are different downloads also. बहुत ही comprehensively दिया हुआ है यहाँ पर. आप different tabs में जाओगे, you will be able to see it on this giftgujarat.in website. ठीक है, so through that sources you can follow it. And of course जो आपको सबसे बेस्ट आइडिया मिलेगा, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि यार ये क्या आ गया, इतनी डिटेल में कैसे पढ़ूंगा, एंड क्या वो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां मुझे फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट में. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना. आप देखो कि 2023 में क्या पूछा, 2024 में क्या पूछा. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी, एंड बेस्ड ऑन दैट बेसिकली you can optimize your strategy. I hope it is clear to you. Now let me also tell you that basically how EduTap can help you as a part of your preparation. Fine, if you are somebody who does not want to go for self-study and you want to follow a single platform where you will find all the material with respect to the different components regarding IFSCA grade A examination. So basically what you can do, you can go to a website which is IFSC, which is edutap.in, and under this you can go to courses section and you can open this IFSCA grade A courses. Fine, and over here you can see that basically we provide two types of courses. The first is, I would say, you can see the course, the gold course, where we are providing content with respect to phase 1 as well as for phase 2, and the silver course where we are providing content with respect to phase 2 only. तो आपको यहाँ concept classes मिलेंगी, concept notes मिलेंगे, mock test मिलेंगे. ठीक है, and if you want to have access to free starter pack, that how this complete course looks like, so you can go for this 15 days free starter pack also. ठीक है, तो ये free of cost है, 0 rupees you can see, और बाकी 71% ऑफ चल रहा है हमारा. So you can go through that also. अगर आपको combo course चाहिए, let us say you want to prepare for IFSC and PFRDA simultaneously, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो. प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसके लिए जाओ, क्योंकि सिलेबस इसका भी ओवरलैप होता है कहीं ना कहीं. तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में दोनों चीजें कवर कर पाओगे, दोनों एग्जाम्स को साथ में टारगेट कर सकते हो. ठीक है, सो वट एवर सूट्स योर प्रिपरेशन, यू कैन गो फॉर इट. दीज आर योर mentors, and rest of the details you can see from the website. So I hope it is clear to you. So that is it from my end. If you have any other question, any other query, do let me know in the comment box. Fine, and I will read all the comments and I will reply your each and every query. So thank you so much and all the best.